A very good morning to everyone those are watching this video. In this video we are going to cover the chapter number 32, in which we talking about our the ancient history of R.S. Sharma. This particular chapter have social changes in the sequence wise. So before starting this video, I want to tell you something for the next lecture series, because we have only one chapter which is left now, and we are on 32 chapter, and the last chapter is 33. So we will be on a geography in the next lecture series, similarly with our polity. If much more students are there, if they like the lecture series of polity and the geography, I will also introduce with a new the lectures of our environment and ecology, and one very famous book of Mr. Ravi P. Agrari for the science and technology, because he is my guru. So that's why I only prefer only that book, because he teaches me that books and their contents, which actually that book is written in a very well way, and the content in this book is very fine. So this the whole information for you, which you want to like, right? So come on the point, and we will discuss the introduction of this particular chapter, the sequence of the social changes in this 32 chapter. And one thing I want to tell you, like each and every lecture I made a request to everyone for a like and a subscribe, because it will gives me much more help, because when you like my video, then my video proceeding further, the persons who watch my video, they feel yes, the person are the supporting this video. That's why he watch my video very carefully. And when you like my when you subscribe my channel, definitely it will much more helpful for you for your study, because on a timely basis you find the notification of my videos, and you watch each and every videos time by times whenever I upload that, right? So my dear friends, come on the introduction of this particular chapter. There are no written text for the study of the society in the pre-Vedic times. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई भी यानी कि रिटन टेक्स्ट देखने को नहीं मिलता है, किसका, कि जो यानी कि प्राग वैदिक हमारा जो यानी कि टाइम्स था, जो उस प्राग वैदिक काल जो था, उसमें हमें कोई भी यानी कि रिटन अगर डॉक्यूमेंट देखा जाए तो कोई देखने को नहीं मिला है. हमने जो भी यानी अपनी हिस्ट्री को यानी कि डेवलप किया है, जो भी यानी कि जाना है उसके समय पे, तो वो टोटली यानी कि आर्कियोलॉजी के बेस पर है, ठीक है. पीपल लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस में रहते थे, ग्रुप्स में रहा करते थे, ठीक है, और वो अधिकतर यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहा करते थे, और यानी कि पैलेलियोथिक में यानी कि रहा करते थे, ठीक है. दूसरी बात ये है, देयर प्रिंसिपल सोर्स जो होता था सब्सिस्टेंस वाज गेम. दे हंटेड एंड विल्ड फ्रूट्स एंड रूट्स दे कलेक्टेड. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनका अगर प्रिंसिपल सोर्स देखा जाए, यानी कि सब्सिस्टेंस मतलब अपनी आजीविका को चलाने का, तो एक गेम खेलते थे वो लोग, यानी कि हंट मतलब शिकार करने का. दूसरी बात, वो लोग क्या करते थे, कंदमूल फलों को और जड़ों को यानी इकट्ठा कर करके, यानी कि जो जंगली फल होते थे उनको, और कंदमूल जो फल होते थे उनको यानी कि इकट्ठा करके खाया पिया करते थे, उसी पर ही वो जीवित रहते थे. मैन लर्नड टू प्रोड्यूस फूड एंड लिव in the houses towards the end of the stone age and the beginning of the use of the metals. कहने का मतलब जैसे जैसे हमारा जो आदमी था वो ज़्यादा यानी कि आगे बढ़ता गया, और यानी कि उसमें बुद्धि आती गई, और वो यानी कि खाने पर जीवित रहने लगा और हाउस में रहने लगा, ठीक है. कब रहने लगा, जब स्टोन एज का यानी कि लास्ट फेज चल रहा था तब. और उसने आरंभ भी कर दिया था मेटल को एज ए यानी कि टूल, मेटल के कुछ यानी कि मेटल के टूल यूज करने लगा था अपनी यानी कि रोज की दिनचर्या में, ठीक है, कार्यों में, ठीक है. न्यूलिथिक, ठीक है, न्यूलिथिक एंड द चैल्कोलिथिक कम्युनिटीज लिव्ड इन द अपलैंड्स इन द प्रोक्सिमिटी ऑफ हिल्स एंड द रिवर्स. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो न्यूलिथिक के जो यानी कि लोग थे, और जो एक मिनट, हाँ, जो नवपाषाण और जो ताम्रपाषाण के लोग यानी कि लोग थे, ठीक है, सॉरी, हाँ, एक मिनट, मैं दोबारा से फिर से जाता हूँ उसी कॉन्टेक्स्ट पे.
नियोलिथिक मतलब नवपाषाण, और जो ताम्र यानी कि चैल्कोलिथिक जो यानी कि ताम्रपाषाण के लोग के जो थे यानी कि कम्युनिटीज, वो रहते थे कहाँ, अपलैंड मतलब ऊंची क्षेत्रों पर, ठीक है। एंड प्रोक्सिमिटी ऑफ द हिल्स एंड रिवर्स, कहने का मतलब वो जो पहाड़ियाँ होती थी ज़्यादा नज़दीक होती थी नदियों से, क्योंकि अगर नदियों से दूर होगी तो पानी मिलने में उन्हें थोड़ी यानी कि दुर्बलता यानी कि कठिनाइयाँ होगी, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, वो लोग नदियों के पास भी रहते थे और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। कि पहाड़ी क्षेत्र पर रहने का मतलब ये होता है कोई भी यानी कि एक्टिविटी ऐसी हो जिसमें यानी कि उनके जान माल का खतरा हो तो कम रहे, ठीक है। ग्रेजुअली पीजेंट्स विलेज वर स्टेब्लिश्ड इन द बेसिन एरियाज एंड इवेंचुअली दे ब्लॉस्म्ड इनटू द अर्बन सोसाइटी ऑफ द हड़प्पन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो यानी कि पीजेंट्स थे मेनली यानी कि जो खेती करने वाले जो किसान होते थे, ठीक है, उन्होंने स्टेब्लिश किया इन दिस बेसिन में अपना एरिया को, ठीक है। और ये देखने को मिलता है उनकी सोसाइटी एक अर्बन सोसाइटी हुई आगे चलकर, कहाँ पर, हड़प्पा में। और उनका यानी कि उनके जो लार्ज और स्मॉल हाउसेस उस वक्त के समय पर हुआ करते थे, ठीक है। हाउएवर वंस हड़प्पन सिविलाइजेशन डिसअपीयर्ड, हमने ये देखा है कि हमारी एक बार जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो डिसअपीयर्ड हो गई, मतलब यानी कि उसका यानी कि अस्तित्व ही मिट गया। अर्बनिज्म डिड नॉट यानी कि रीपियर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर अबाउट, यानी कि देखा जाए यानी कि जैसे ही अर्बन यानी हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी खत्म हुई तो लगभग 1500 वर्षों तक यानी कि अर्बनाइजेशन हमारे कंटिनेंट में देखने को नहीं मिला। बाद में आया उसके, ये तो यानी कि हमारे गुड लक की बात है, लेकिन 1500 वर्षों तक अर्बनाइजेशन देखने को नहीं मिला। सारी रूरल इकोनॉमी चल रही थी, रूरल लोग यानी कि लिविंग रहते थे और उसी तरीके से काम करते थे। अब बात करेंगे यानी कि यहाँ पर ट्राइबल लोगों के बारे में और यानी कि पेस्टोरियल फेज, यानी कि पेस्टोरियल फेज वो होता है कि आज खा लिया कल का पता नहीं, ठीक है। पेस्टोरल इकोनॉमी लाइक द रिक्शा वाला इकोनॉमी, रिक्शा वाला क्या करता है, ये आज कमा लिया, ठीक है, आज खा लिया कल का पता नहीं, कल उसका रिक्शा चलेगा भी या नहीं चलेगा, ठीक है। तो सिंपल तरीका है मारना खाना, ठीक है, दैट इज द पेस्टोरियल फेज। और कैसे, उसमें कौन थे, ट्राइबल लोग थे जो यानी कि एक जगह पर कुछ जनजाति के ग्रुप रहते हों और दूसरी जगह जाकर विचरण करके कुछ पाया तो खा लिया, नहीं तो ऐसे ही चल रहे। फॉर द हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम द टाइम ऑफ द ऋग्वेदा ऑनवर्ड्स, यानी कि ऋग्वेदा से आगे बढ़कर अगर हम देखें यानी कि सोसाइटी में हमारी हिस्ट्री के, तो होता क्या है, वी कैन यूज द रिटन टेक्स्ट। हमने देखा है कि यानी कि रिटन टेक्स्ट यानी कि हम लोग यूज करते थे ऋग्वेदिक पीरियड में। अगर आ जाते हैं आगे बढ़ते हुए, दे टेल्स अस द ऋग्वेदिक सोसाइटी, यानी कि ऋग्वेदिक सोसाइटी के बारे में बताते हैं। डिस्पाइट इट्स मैस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि उसकी यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा भी यानी कि क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ पर देखने को था ही नहीं, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे थे, मारते थे, यानी कि जानवरों को खाते थे, फलों को खाते थे, कंदमूल फल खाया करते थे। तो बेहतर है यानी कि वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको किसके बारे में, सोसाइटी के बारे में लिखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर एग्रीकल्चर मेंशन नहीं मिलता है। वाज द प्राइमरी पेस्टोरल, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो वो लोग पेस्टोरियल टाइप से यानी कि एक मैं क्या बोलूँ, कौन सा जीवन, हिंदी में तो मुझे आता नहीं, ठीक है। तो पेस्टोरियल समझ सकते हो, मैं यानी कि अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ दैट इकोनॉमी इन विच द पीपल ओनली ईट द फूड्स विच फाइंडिंग लाइक आफ्टर हंटिंग द एनिमल्स, आफ्टर eating the fruits and the foods, right, not for agriculture products, right, in which the agriculture is not involved, that is the pastoral phase, that is a pastoral economy. पीपल वर सेमी नोमैडिक, यानी कि लोग जो थे उस वक्त के सेमी नोमैडिक्स थे, यानी कि जाने नोमैडिक्स मतलब एक होता है नोमैडिक पूरा, एक होता है सेमी नोमैडिक्स, मतलब ना ही वो एग्रीकल्चरिस्ट है और ना ही ज़्यादा यानी कि वो लोग यानी कि उस पर यानी कि उसी पर डिपेंडेंट है, मतलब यानी कि मारने पर ही, तो कुछ थोड़ा बहुत यानी कि जान गया था आगे चलकर। एंड देयर प्रिंसिपल पोसेशंस वर कैटल एंड द हॉर्सेस, कहने का मतलब यहाँ पर ये थे कि उनके अगर देखा जाए तो मेनली जो यानी कि प्रिंसिपल होता था अपनी जो यानी कि इकट्ठा करने का यानी कि वेल्थ को, तो उनका कैटल और हॉर्स को इकट्ठा करना होता था। यानी कि टर्म फॉर गाउ यानी कि गाय के लिए और बुल के लिए एंड हॉर्स के लिए फ्रीक्वेंटली फिगर इन द ऋग्वेदा, यानी कि ऋग्वेदा में यानी कि क्या है, यानी मैंने पहले भी पढ़ा रखा है आपको है, तो ऋग्वेदा में यानी कि देखने को मिलता है गाय के लिए, जो बैल है उसके लिए, और यानी कि हमारा जो हॉर्स है उसके लिए, यानी कि बहुत बार ऋग्वेदा में इनके बारे में वर्ड्स रिपीट हुए हैं। कैटल वर कंसीडर टू बी ए सिनोनियम्स विद वेल्थ, कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो कैटल हैं उनको कंसीडर किया गया है
किसके साथ, सिनोनिम विद द वेल्थ, यानी कि जो कैटल है उनको धन माना गया है उस वक्त के समय पर, ठीक है। ए वेल्दी पर्सन वाज कॉल्ड गोमत, और इसीलिए उस वक्त के समय का जो व्यक्ति होता था उसे धनपति या लखपति नहीं कहा जाता था, उसे गोमत बोला जाता, मतलब जिसके पास गौ ज्यादा होगी, मत यानी कि गवों का मत जिसके पास ज्यादा होगा उसे गोमत बोला जाएगा। Wars were fought over the cattle and therefore the Raja, whose the principal responsibility was to protect the cows, was called the Gopa or the Gopati। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, उस वक्त यानी कि युद्ध जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो खाली गाय को लेकर यानी कैटल्स को लेकर लड़ी जाती थी, ठीक है। मतलब घोड़े के लिए, बुल के लिए, गाय के लिए, जिस यानी कि हम तुम्हारी गाय, यानी कि गाय पहले जैसे आज धन के लिए, खेती के लिए लड़ाई हो जाती है, उस वक्त यानी कि गाय के लिए लड़ाई होती थी। इसीलिए जो राजा होता था उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो अपनी प्रजा को यानी कि बचा कर रखे, जो भी युद्ध हो उसमें उसकी पूरी भूमिका निभाए, इसीलिए उसे रक्षक बोला जाता था, इसीलिए उसे गोपति भी कहा जाता था, गोपा या गोपति। द काउ वाज so central to subsistence of the family that the daughter was called दुहित्री। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि काऊ का इतना डोमिनेंस देखने को मिलता है, इसीलिए बेटी को दुहित्री बोला जाता था, जिसका मतलब होता था कि वो मिल्क करती है, मतलब दुहने वाली। so intimate was acquaintance of the Vedic people with the kind that when they encountered the buffalo in India। पहली बार जब उन्होंने यानी कि जब वैदिक लोग जो थे यानी इंडिया में आए और उन्होंने देखा पहली बार यानी कि बफेलो को, ठीक है, दे कॉल्ड गोवाला, उन्होंने उसे यानी कि गोवाला बोला। गोवाला का मतलब यानी कि ऐसा पशु जिसके बाल गाय के जैसे हों, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू रेफरेंस द काउ एंड द बुल्स दोज द एग्रीकल्चर वर फीवर एंड अकर इन द लेट हाइम्स ऑफ द ऋग्वेदा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम किसके रेफरेंसेस में देखें, काउस के एंड द बुल्स के, हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर है बाद में दिखाई पड़ा, लेकिन उसके हाइम्स यानी कि हमें जुताई के बारे में जो हाइम्स हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं, खेती के बारे में हाइम्स दिखाई पड़ते हैं बहुत ही लेटर में, लेट फेज में ऋग्वेदा यानी कि ऋग्वेदिक जो है उसमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। कैटल रियरिंग वाज दस द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द लिवलीहुड, जो यानी कि कैटल को रियर करने का मतलब कैटल को यानी कि जो पालने का यानी कि जो यानी कि देखने को एक यानी कि सिद्धांत मिलता है, सोर्स मिलता है, एक क्या होता है उससे कि लिवलीहुड लोगों की चलती थी। इन सच अ सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी में पीपल वर बारले एबल टू प्रोड्यूस द एनीथिंग ओवर एंड अबव देयर बायरेस्ट सब्सिस्टेंस। कहने का मतलब यानी कि इन अ सोसाइटी पीपल वर बारले एबल यानी कि पीपल को यानी कि लोग जो थे उनको इतना यानी कि योग्य माना जाता था कि वो प्रोड्यूस करते थे एनीथिंग, कुछ भी, ओवर एंड अबव देयर द बायरेस्ट सब्सिस्टेंस, यानी कि अब वो सब्सिस्टेंस से आगे निकल कर आ चुके थे। ट्राइब्समैन कुड अफोर्ड ओनली द ओकेजनल पीजेंट्स फॉर देयर चीफ्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो यानी कि ट्राइब्समैन हुआ करते थे वो अफोर्ड कर सकते थे ओनली द ओकेजनल यानी कि प्रेजेंट्स, किससे, फॉर द चीफ्स, यानी कि चीफ को यानी कि वो लोग दान में भी कुछ दिया करते थे, मतलब चीफ को यानी कि एज ए गिफ्ट बहुत सारी चीजें दिया करते थे। प्रिंसिपल इनकम्स ऑफ द चीफ आर द प्रिंस केम फ्रॉम द स्पॉइल्स ऑफ वार। कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो प्रिंस यानी कि उसकी जो मुख्य अगर देखा जाए यानी कि मेनली जो इनकम होती थी चीफ की, मतलब जो मुखिया होता था या जो प्रिंस मतलब राजकुमार होता था, उसकी जो यानी कि इनकम होती थी, जो यानी कि उसकी आमदनी होती थी, वो कहाँ होती थी, जब कोई किसी से युद्ध करता था उसमें जो छीनी गई यानी कि जो संपत्ति होती थी वो उसकी संपत्ति हुआ करती थी। ही कैप्चर्ड बूटी फ्रॉम द इनमी ट्राइब्स एंड extracted tributes from them and from his own tribal compatriots। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर मैं कुछ शब्दों में बोलूं कि जो यानी कि जो राजा होता था या मुखिया होता है, अगर मान लो किसी पर उसने अटैक किया तो अपने इनमी से बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करता था ट्रिब्यूट के फॉर्म में, ठीक है। कहता तुम्हें ये भी देना पड़ेगा, तुम्हें ये भी देना पड़ेगा, तुम्हें ये गाय देनी पड़ेगी, तुम्हें ये हॉर्स देना पड़ेगा, तभी मैं तुमको छोड़ूंगा। तो मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उनसे ले लेता था। ट्रिब्यूट रिसीव्ड बाई हिम वाज कॉल्ड बली। कहने का मतलब उनसे जो ट्रिब्यूट ली जाती थी उसके समय पर उसे बली बोला जाता था, ठीक है। वॉलेंट्री थोड़ा अलग हुआ। बली मतलब एक वर्ड यानी कि जैसे आज हम यूज करते हैं उपहार, तो उस वक्त उसे बली बोला जाता था। It appears that the tribal kinsmen reposed trust in the tribal chief and gave him voluntary peasants। कहने का मतलब यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है जो ट्राइबल किंसमैन थे, ठीक है, वो दोबारा से रिपोज्ड मतलब उसके ऊपर
सपोज करते थे, तो यानी कि विश्वास करके चलते थे कि ट्राइबल जो चीफ हैं, ठीक है, एंड गिव देम वॉलंटरी, उनको यानी कि वो लोग क्या करते थे, मतलब जो उनके जो राज्यकाल में लोग रहते थे उनको वॉलंटरी दिया करते थे। इन रिटर्न द चीफ लेड देम फ्रॉम द विक्ट्री टू विक्ट्री, और उसके बदले में यानी कि जो राजा या मुखिया होता था पूरी अपनी यानी कि साम्राज्य का या पूरी अपनी यानी कि ट्राइब का अच्छे से यानी कि देखभाल करता था और उन्हें जीत पे जीत दिलाता रहता था। एंड स्टूड बाय देम इन डिफिकल्ट टाइम्स, और उनको यानी कि कठिन समय में यानी कि बचाया करता था। द रिस्पेक्ट एंड द इरेगुलर गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय द प्रिंस फ्रॉम द ट्राइब्समैन may have become customary in the Vedic times। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि रिस्पेक्ट एंड द इरेगुलर गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय द प्रिंस, कहने का मतलब यानी कि जो प्रिंस हुआ करता था राजकुमार, ठीक है, वो रिस्पेक्ट और यानी कि किसी भी समय यानी कि गिफ्ट वो यानी कि रिसीव करता था अपने यानी कि जो उसके ट्राइब्स में रहते थे, ठीक है। और ये अधिकतर देखने को मिलता है, यानी कि कस्टमरी चल रहा था ये, मतलब महान होने यानी कि बीकम कस्टमरी होने के लिए वैदिक समय में सब कुछ यानी कि लिया जाता था। हाउएवर डिफीटेड हॉस्टाइल ट्राइब्स, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हालांकि हमने देख रखा है कि जो हॉस्टाइल ट्राइब्स है उनको यानी कि डिफीट किया जाता था, ठीक है, वर फोर्स्ड टू पे, उनको कहा जाता था कि हमें ट्रिब्यूट्स देना पड़ेगा आपको। Periodic sacrifices provide an important occasions for the distribution of these gifts and the tributes। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो अगर पीरियोडिक सेक्रीफाइस यानी कि समय के अनुसार, यानी कि अगर मुझे आज यानी कि मुझे वॉलंटरी या मुझे यानी जो भी मुझे यानी कि गिफ्ट या ट्रिब्यूट मुझे देना पड़ा है राजकुमार को, आने वाले समय चक्र पर मुझे फिर से देना पड़ेगा, मतलब एक पीरियोडिक फॉर्म में था, मतलब आज मैंने दे दिया तो कल को दूसरा देगा, तीसरा कोई अलग देगा, तो इस तरीके से चलता रहता था। तो इस तरीके से राजा को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी और लोगों को भी देने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है। प्रोवाइडेड एन इंपॉर्टेंट ऑकेजन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज गिफ्ट्स एंड ट्रिब्यूट्स, ठीक है, मैंने बताया वही था। द लाइन शेयर वर शेयर वेंट टू प्रीस्ट इन लीव ऑफ द प्रेयर्स दे ऑफर्ड टू द गॉड्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर पैटर्न्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये लाइन्स का जो शेयर होता था, ठीक है, राजशाही जो शेयर होता था, वेंट टू प्रीस्ट, वो कहाँ यानी कि प्रीस्ट को जाता था, किसके लिए, कि प्रार्थना करने के लिए, भगवान को ऑफर करने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ द पैटर्न, यानी कि जो राजा होता था उसके समय, यानी कि राजा कहता था कि इतना यानी कि शेयर जो है किसको जाना चाहिए, प्रीस्ट को जाना चाहिए, और वो उसके बिहाफ पर क्या करेगा, भगवान की स्तुति करेगा, पूजा करेगा, और उसके बदले में हमारा साम्राज्य खुशहाल रहेगा, ठीक है। ये किसका कहना था, पैटर्न, मतलब जिस वक्त का राजा होता था उस समय काल का। इन वन पैसेज द ऋग्वेदा the god invoked his asked the bestow wealth only on prince and the sacrifices his this suggests an attempt at unequal distribution। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, एक जो यानी कि पैसेज है ऋग्वेदा में देखने को मिलता है, उसमें ये पता चलता है कि गॉड जो है इन्वोक्ड करता है, कहता है कि वेल्थ ओनली ऑन प्रीस्ट, यानी कि प्रीस्ट पर होनी चाहिए, यानी कि ठीक है, यानी कि डिपेंड करती है प्रीस्ट पर, प्रिंस पर, एंड द सेक्रीफाइस, यानी कि क्या क्या सेक्रीफाइसेस मिल रहे हैं, ठीक है। दिस सजेस्टेड एन अटेम्प्ट टू एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे ये पता चलता है कि अधिकतर जो यानी कि वेल्थ होती थी किसके पास होती थी, प्रीस्ट के पास होती थी, प्रिंस के पास होती थी, राजा के पास होती थी, ठीक है, जो सेक्रीफाइसेस मिलते थे। तो इससे ये पता चलता है कि लोगों अदर जो लोग होते होंगे उनके पास यानी कि वेल्थ अच्छी नहीं होती होगी, तो इससे ये पता चलता है कि एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था किसका, यानी कि संपत्ति का, ठीक है। प्रिंसेस एंड प्रीस्ट सॉट टू इंक्रीज देयर शेयर्स एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन पीपल। कहने का मतलब यहाँ पर जो प्रिंस मतलब राजकुमार जो है, प्रीस्ट, वो देखने को मिलता है उनके अंदर यानी कि इंक्रीज मिलता है, यानी कि उनका जो शेयर्स होता था, ठीक है, यानी कि बढ़ता रहता था समय के अनुसार, ठीक है। फ्रॉम द, यानी कि किससे लिया करते थे, वो कॉमन पीपल से लिया करते थे। Although the people voluntarily gave a large share of their chiefs and the princes out of the defenses of, and because of their military qualities and the services they provided। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो वॉलंटरी होती थी लोगों के द्वारा दी जाती थी बड़े स्तर पर, ठीक है, ज़्यादा शेयर मिलता था, वो अपने चीफ को दिया करते थे, प्रिंसेस को दिया करते थे, ठीक है, क्योंकि वो डिफेंस करते थे, यानी कि उनको बचाया करते थे, मिलिट्री पर, यानी कि मिलिट्री अपनी तैयार करके लोगों से यानी कि उनके सर्विस प्रोवाइड कराते थे। तो इन सभी के चक्कर में कहते थे कि अगर आपने हमें बचाया है तो हम आपको यानी कि हमारी तरफ से थोड़ा गिफ्ट लीजिए। ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द ट्राइब्स रिसीव्ड अ शेयर नोन एज द अम्सा
जिसको यानी कि अंश या भागा बोला जाता था। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यानी कि जो मेंबर्स हो करते थे यानी कि जो ट्राइब के, वो रिसीव करते थे क्या इससे, यानी कि उनको शेयर दिया करते थे राजा को, जिसको यानी कि भाग बोला जाता था। कुछ भाग आप यानी कि ये यानी कि कहते नहीं है, ये यानी कि मान लो प्लेट है, प्लेट को मैंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया, तो 4 भाग कैसे पता चला, ये भाग पता चला, एक भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 1 पार्ट इसी तरीके से कोई ना कोई कितना भाग दे रहे हैं वो राजा को, तो उसके भाग या अंश बोला जाएगा। which was contributed in folk gatherings, assemblies attended by the rajas and their clansmen। क्या ठीक है। Although the artisans, peasants, priests and warriors figure even in the earlier patrons portions of the Rig Veda society as a whole was the tribal, pastoral, semi-nomadics and the egalitarian। यद्यपि जो आर्टिसंस हैं, पीजेंट्स हैं, प्रीस्ट हैं एंड द वेरियर्स हैं, ठीक है, उनको फिगर किया गया है इन द अर्लियर यानी कि पोर्शन में जो ऋग्वेदा में है, ठीक है। और वो यानी कि सोसाइटी एज ए होल वाज ट्राइबल, पेस्टोरल एंड द नोमैडिक, यानी कि पूरी सोसाइटी को यानी कि ये दिखाया गया है कि पेस्टोरल हुआ करती थी, ठीक है, सेमी नोमैडिक होती थी और इगैलिटेरियन होती थी। द स्पॉइल ऑफ वार एंड द केटल constituted the principal form of the property। Cattle and the women slaves were generally offered as a gift। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कैटल हुआ करते थे, ठीक है, एंड द वुमेन्स यानी कि जो कैटल एंड द वुमेन स्लेव्स है, ठीक है, वो यानी कि ऑफर की जाती थी एज ए गिफ्ट के फॉर्म में अपने राजा को या चीफ को, कि ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, ये यानी कि जो वुमेन हमने आपको दी है इस स्लेव की तरह आपके घर में झाड़ू पोछा करेगी, ठीक है, कैटल दिया है ये आपकी नीड्स को फुलफिल करेंगी, ठीक है। कुछ लोग यानी कि मिल्क करते थे, तो कुछ लोग ऐसा करते थे काट के खा जाते थे, ठीक है, इस तरीके का चलता था। Gifts of the cereals are hardly mentioned because these were not produced on any sizable scale। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं बात करूँ जो गिफ्ट्स हैं, ठीक है, गिफ्ट्स ऑफ द सीरियल्स यानी कि सीरियल्स के अगर गिफ्ट देखे जाए आर हार्डली मेंशन, उनको हार्डली तरीके से मेंशन किया गया है क्योंकि वो यानी कि नॉट प्रोड्यूस ऑन अ साइजेबल यानी कि स्केल पर यानी कि नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे, ठीक है, कि यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये देखने को मिलता है कि जितनी यानी कि प्रोड्यूस यानी कि है उससे ज़्यादा तो यानी कि लिया जा रहा है, तो इसलिए जितना हमें चाहिए उतना हो ही नहीं पा रहा है प्रोड्यूस है, ठीक है, कहीं राजा को देना पड़ रहा है, कहीं वॉलेंट्री को देना पड़ रहा है, कहीं प्रिस्ट को देना पड़ रहा है, कहीं जो हमसे यानी कि हमारे ऊपर ये यानी कि मतलब जो राजा के द्वारा यानी कि ये कोई एजेंट है जो हमसे ले रहा है, मतलब शेयर वगैरह, ठीक है, बहुत सारी फ्यूडल्स हुआ करते तो वो भी ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें यानी कि थोड़ा दिक्कत कर रही थी, इतना यानी कि ऊपर से नहीं था जितना यानी कि वो लोग ले रहे थे। Therefore, apart from the booty captured in a wars, there was no other substantial sources of the maintenance of the prince and the priest। It was possible to have high ranks, but not high social classes। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, लोगों में देखा गया यानी कि हाई रैंक्स हुआ करती थी लेकिन सोशल क्लासेस नहीं हुआ करती थी। प्रिंस एंड प्रीस्ट एम्प्लॉयड वुमेन स्लेव्स फॉर द डोमेस्टिक सर्विसेज। जो प्रिंस होते थे और जो प्रीस्ट हुआ करते थे पुजारी लोग, वो यानी कि जो औरतें होती थी उनको यानी कि घरेलू काम के लिए यानी कि एम्प्लॉय करते थे, घर पर रखा करते थे काम के लिए। बट देयर नंबर वर प्रोबेबली नॉट लार्ज, लेकिन इनका अगर संख्या देखी जाए तो कम होती थी, ठीक है। The Rig Vedic society did not have a serving order which was later found by the Sudras। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऋग्वेदा सोसाइटी में यानी कि ऐसा नहीं दिखाया गया है कि लेटर यानी कि जो सर्विंग है वो इस तरीके से नहीं जैसा यानी कि लेटर फेज में यानी कि शूद्रा के द्वारा दिखाया गया है। एग्रीकल्चर एंड द ओरिजिन ऑफ द अपर ऑर्डर्स, यानी कि हम अब यहाँ पर क्या बात करेंगे कि एग्रीकल्चर कैसा था, अगर था तो कैसा था, कौन कौन कर रहे थे, किसको करने का अधिकार था, किसको नहीं करने का अधिकार था। अब यहाँ पर बात करेंगे ओरिजिन ऑफ द अपर ऑर्डर्स, मतलब ऊपर के लोग जो मतलब यानी कि जो अपर वर्ण के लोग थे उनका ऑर्डर कैसा था, क्या वो ज़्यादा लोग यानी कि लोगों को सता रहे थे, या ऑर्डर अभी तक मेंटेन थे या नहीं थे, चल भी पा रहे थे या नहीं चल पा रहे थे, क्या दिक्कतें थी, उनके बारे में हम सब कुछ समझेंगे।
When the Vedic people moved from the Afghanistan and the Punjab to Western UP, they largely become the agriculturist. कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जब वैदिक पीपल ने यानी कि जो वैदिक के लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने यानी कि मूव किया अफगानिस्तान से अफगानिस्तान और पंजाब की तरफ से किधर, यूपी की तरफ। तो उन्होंने यानी कि ये चीज़ें इतनी खाने पीने को नहीं मिली, मतलब यानी कि जिससे वो मार के खा जाते थे। तो यहाँ पर अब उन्होंने क्या सीखा, एग्रीकल्चर करना सीख लिया। आर्कोलॉजी शोज दैट इन द लेटर वैदिक टाइम्स, यानी कि लेटर वैदिक समय में अगर देखा जाए तो आर्कोलॉजी हमें बताती है देर वाज कंटिन्यूइंग सेटलमेंट्स फॉर 2 or 3 सेंचुरीज। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 2 या 3 सेंचुरी के अराउंड यानी कि हमें सेटलमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। दिस गिव्स राइज टू द टेरिटोरियल चीफडम्स, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर हमें यानी कि किसका, टेरिटोरियल चीफडम का यानी कि राइज देखने को मिलता है, मतलब वर्चस्व देखने को मिलता है। From the tribute obtained from the peasants and the others, the prince could perform the sacrifices and the rewards their priests। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो यानी कि ट्रिब्यूट्स थे ऑब्टेन किए जाते थे कहाँ से, पीजेंट से, ठीक है, एंड अदर लोगों से। किसके लिए, यानी कि प्रिंस के लिए, जो यानी कि परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, सेक्रीफाइस एंड द रिवार्ड द प्रीस्ट, यानी कि प्रीस्ट को क्या दे सके, रिवार्ड दे सके। द लेटर कहने का मतलब जो राजकुमार होते थे या राजा होते थे, वो यानी कि बड़े से बड़ा यानी कि सेक्रीफाइस करवा सकें, और यानी कि जो उसके बदले में यानी कि जो भी यानी कि रिवार्ड है, ट्रिब्यूट्स है, यानी कि वो राजा को यानी कि प्रीस्ट को दे सकें, क्योंकि वो भगवान से प्रार्थना कर सके कि हम खुशहाल रहे, हमारा साम्राज्य सही से ठीक रहे। द लेटर वेडिक पीजेंट्स पेड द नोबल्स एंड वेरियर्स who in the turns made the donation in the to the priest। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर लेटर वैदिक में देखा जाए, जो पीजेंट्स होते थे, पीजेंट्स मतलब मेनली जो खेतियर लोग, ठीक है, वो पेड करते थे, पेड द नोबल्स एंड द वॉरियर्स, यानी कि किसको पे करते थे, जो वेरियर्स होते थे और नोबल्स होते थे, ठीक है, इन टर्म टू मेड द डोनेशन, यानी कि वो डोनेशन करते थे, ठीक है, आगे चलकर जो होते थे, और फिर किसको करते थे, हमारे प्रीस्ट को करते थे। इन एडिशन आल्सो पेड द सेक्रीफिशियल फीस टू प्रीस्ट, और आगे यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये वो सेक्रीफाइशियल फीस भी यानी कि उनको डोनेट करते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ क्या होता है, शादी होती है, तो शादी में क्या होता है, जो पंडित जी आते हैं शादी यहाँ करवाते हैं, तो शादी करके खुद थोड़े ना चले जाते हैं, मतलब उसके बदले में कुछ मुद्रा या दान लेकर चले जाते हैं। सिमिलरली तरीका यही उस वक्त भी था, मतलब पूरा यानी कि सेक्रीफाइसल जो यानी कि यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ, जो भी यज्ञ करवाना, यज्ञ वज्ञ करवाना है, ठीक है, उसके बदले में क्या करते थे, यानी कि अपना कुछ डोनेशन या जो भी फीस है वो लेकर चले जाते थे। द पीजेंट सप्लाइड फूड टू द स्मिथ्स। कहने का मतलब यहाँ पर जो यानी कि खेतियर लोग थे, वो यानी कि जो स्मिथ हुआ करते थे, जैसे यानी कि लोहार है, सुनार है, ठीक है, ठीक है, चैरियट मेकर है, कारपेंटर है, उनको यानी कि क्या फूड प्रोवाइड करा करते थे। ऑन द लार्जली सर्व्ड द इमर्जिंग क्लास ऑफ द वेरियर्स, और किसको यानी कि जो वेरियर्स की जो यानी कि बड़ी क्लास होती थी उसको यानी कि वो फूड यानी कि फूड प्रोवाइड कराते थे कि वो उनको प्रोटेक्ट कर सकें अदर टेरिटरी से, ठीक है। और ये जो यानी कि स्मिथ हुआ करते थे, चैरियट मेकर हुआ करते थे, कारपेंटर जो हुआ करते थे, वो चीज़ें तैयार करते थे किसके लिए, वेरियर्स के लिए, कि आप इनका यूज कर सकें। कारपेंटर यानी कि उनके लिए मतलब रथ या वगैरह यानी जो भी धनुष वगैरह तैयार करते होंगे। चैरियट मेकर उनके लिए रथ को तैयार करते होंगे। स्मिथ उनके लिए तीर तलवार तैयार करते होंगे, ठीक है। और उनको फूड देने का जो पूरा कार्य था पीजेंट्स क्या करते थे। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो पूरा ढग्गा टिका पड़ा है किसके ऊपर है, पीजेंट्स के ऊपर। हाउएवर द लेटर वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीजेंट्स वाज अनेबल टू कंट्रीब्यूट टू राइज ऑफ द ट्रेड एंड द टाउन्स। अगर यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के अराउंड देखा जाए तो उस वक्त के जो पीजेंट्स थे वो इतने यानी कि इतने एबल नहीं थे कि वो ट्रेड एंड टाउन्स को यानी कि ज़्यादा फ्लरिश कर सकें, ठीक है, ज़्यादा उनका यानी कि वर्चस्व दिखा सकें। एंड दिस फीचर्स वाज कॉन्स्पीशियस इन द एज ऑफ द बुद्धा। ये आगे चलकर जो फीचर्स था वो कॉन्स्पीशियस हुआ किस में, यानी कि बुद्धा के फेज में जाकर। द लेटर वैदिक सोसाइटी यूज्ड आयरन ऑन द लिमिटेड स्केल। कहने का मतलब जो लेटर वैदिक यानी कि एक था वैदिक यानी कि ऋग वैदिक सोसाइटी, एक लेटर वैदिक सोसाइटी था। तो लेटर वैदिक सोसाइटी में क्या हुआ, लोगों ने आयरन को एक लिमिटेड स्केल के ऊपर यूज किया, मतलब सीमित मात्रा में। बट द यूज ऑफ द मेटल मनी वाज अननोन। और यहाँ पर ये देखने को मिला कि जो मेटल की मनी जो था, मतलब जो करेंसी थी, कॉइन्स वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। द वैदिक कम्युनिटीज
हैड established neither the taxation system nor a professional army। कहने का मतलब यहाँ पर ये देखने को मिलता है लोगों के पास यानी कि उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम यानी कि स्टेब्लिश नहीं कर रखा था और ना ही उनके पास यानी कि बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी थी। ठीक है, टैक्स कलेक्टर अपार्ट फ्रॉम द किंग्समैन ऑफ द प्रिंस डिड नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है उस वक्त टैक्स कलेक्टर यानी कि नहीं हुआ करते थे। प्रिंस ही जो कुछ यानी कि जो लिया करता था मतलब एज ए ट्रिब्यूट के फॉर्म में वही ले लेता था, बाकी यानी कि अलग से कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं था उस वक्त के समय पर। पेमेंट मेड टू द किंग वाज नॉट वेरी डिफरेंट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पेमेंट किया जाता था किसको यानी कि किंग को, वो डिफरेंट नहीं था फ्रॉम द यानी कि सेक्रीफिशियल ऑफरिंग मेड टू द गॉड्स। जैसे यानी कि हम भगवान को यानी कि चीज़ें ऑफर करते हैं ऐसे यानी कि हम लोग राजा को ऑफर किया करते थे। तो इसलिए उस वक्त का जो भगवान होता था यानी कि राजा जो होता है एक भगवान के समान यानी कि ट्रीट किया जाता था, देखा जाता था। द ट्राइबल मिलिशिया ऑफ द पेस्टोरियल सोसाइटी वाज रिप्लेस्ड बाय द पीजेंट्स। एक मिनट, द ट्राइबल मिलिशिया ऑफ पेस्टोरियल सोसाइटी वाज रिप्लेस्ड बाय द पीजेंट्स मिलिशिया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये अब देखने को मिल रहा था लेटर वैदिक सोसाइटी में कि जो ट्राइबल यानी कि लोग थे अब वो यानी कि पीजेंट्स में यानी कि चेंज हो चुके थे। ठीक है, एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी आ चुकी थी। ठीक है, द विस आर द ट्राइबल्स पीजेंट्री फॉर्म द सेना और द आर्मी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो विस यानी कि विस मतलब वो जो ट्रेड में भी काम कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं तो उनको विस बोला गया। तो वो लोग क्या करते थे जिनको ट्राइबल पीजेंट्री बोला जा रहा है। ठीक है, तो वो लोग यानी कि अब सेना में और आर्मी में, सेना या आर्मी में यानी कि कन्वर्ट हो चुके थे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये खेती भी कर रहे हैं, समय आने पर यानी कि युद्ध भी लड़ रहे हैं। पीजेंट्री इन द लेटर वैदिक टाइम्स वाज कॉल्ड बला। कहने का मतलब यानी कि जो पीजेंट्स थे उनको लेटर वैदिक टाइम्स में उनको बला बोला गया। बला मतलब फोर्स, फोर्स मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर युद्ध करने के लिए क्षमता हो, लड़ सकते हैं। द आर्मी टू प्रोटेक्ट द अश्वमेध हॉर्स। आर्मी जो होती थी अश्वमेध का जो यज्ञ होता, अश्वमेध यज्ञ का जो यानी कि जो हॉर्स होता था, घोड़ा होता था, उसको यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ जाते थे और उसको यानी कि पूरी कंट्री के अंदर अपनी जहाँ जहाँ यानी राजा सोच रखा कि इतना मेरा कंट्री है उसके अंदर अगर कोई भी उसे टच करता था तो राजा को उसकी यानी कि चुनौती स्वीकार करनी पड़ती थी और उसके साथ युद्ध करना पड़ता था, या तो उस घोड़े के सामने सभी नतमस्तक हो जाए कि हाँ हमने इसका राज्य स्वीकारा, ये हमारे यहाँ के राजा हैं। ठीक है, ये सब यानी कि अश्वमेधा के अकॉर्डिंग होता था। कंप्राइजिंग बोथ द क्षत्रिय एंड विस, यानी कि कहने का जो अश्वमेधा हॉर्स होता था वो कंप्राइज करता था किसको, यानी कि जो क्षत्रिय थे और विस को। आर्म्ड विद द बोज क्विर्स एंड शील्ड, the former acted as a military captains and the dealers. Armed with the staves, the latter constitutes the ranks and file. Simple है। In order to achieve the victory, the chief or the noble was required to eat from the same vessels as the wish। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर यानी कि हमें विजय को अचीव करना है, मतलब विजय श्री अपने माथे लिखनी है, तो होता क्या था, चीफ या फिर जो नोबल होता था उसको यानी कि जरूरत होती थी क्या, टू ईट करने के लिए फ्रॉम द सेम वेसल्स। जैसे यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मुझे किसी से काम निकालना है तो मैं उसका जूठा खाना भी यानी कि स्वीकार करूंगा। सिमिलरली उस तरीके से उस वक्त यही होता था। राजा को क्या होता था, जब वो सोच लेता था कि मेरी टेरिटरी या मेरा यानी कि साम्राज्य आज कठिनाइयों में फंस चुका है, दूसरा आदमी मेरे पे अटैक करने वाला है, तो उस वक्त क्या होता था, राजा सोचता था वो अपनी प्रजा के साथ बैठकर खाना खाता था और उनको भाईचारा की भावना में उलझा लेता था, मतलब फंसा लेता था और कहता था मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम मेरे लिए हो, राजा के लिए प्रजा है, प्रजा के लिए राजा है, आज हम युद्ध इसीलिए लड़ेंगे और सब लोग मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। सिंपल। The priest stressed through the rituals the subjections of the peasantry or the vaishyas to the various nobles, but even then the process of the transforming the tribesmen into the tax paying peasants was very distinct। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलना चाहूँ कि प्रोसेस देखने को मिलता है किसका, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग करने के लिए ट्राइब्समैन को, ठीक है, इनटू टैक्स पेइंग हो गया था आगे चलकर, और ये क्या था, बहुत ही यानी कि इनडिस्टिंक्ट था।
द यूज ऑफ द वुडन प्लोसेयर, यानी कि यहाँ पर यानी कि लकड़ी के कठवा हल का यूज हो रहा था। एंड इन इनडिस्क्रिमिनेटेड किलिंग ऑफ द कैटल्स, और यहाँ पर लोग यानी कि पशुओं को यानी कि काटने के लिए इनडिस्क्रिमिनेट करने लगे थे, मतलब मना करने लगे थे कि ये करना पाप है, ये ऐसा कुछ सोचने लगे थे। इन द सेक्रीफाइस एंड मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द पीजेंट्स टू प्रोड्यूस मच ओवर द अबव देयर सब्सिस्टेंस नीड्स। कहने का मतलब उन लोग यानी कि जो पीजेंट्स हैं उनको मजबूर कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि उत्पन्न पैदावार करें और अपनी यानी कि जो भी इच्छाएं हैं उनसी से पूरा करें, किसी भी जानवर को क्षति ना पहुंचाए। एंड इन दिस टर्म्स प्रिवेंटेड देम फ्रॉम द पेइंग टैक्स रेगुलर टैक्सेस, और इसी के बेसिस पर आगे देखने को मिलता है कि जो टैक्स थे वो रेगुलर यानी कि पे किए जाने लगे थे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए, मैं अगर बात करूं, प्रिंस वर नॉट कंप्लीटली अलाइन्ड फ्रॉम द पीजेंट्स, यानी कि वो पीजेंट से यानी कि कंप्लीटली तरीके से यानी कि पूर्ण तरीके से अलाइनेटेड नहीं था, ठीक है। इन द कंसोनेंस, ठीक है, विद द ट्राइबल प्रैक्टिस, राजा वर एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर एंड इवन टू पुट देयर हैंड्स टू द प्लो, देयरफॉर द गैप बिटवीन द वैश्या एंड द राजनज वाज नॉट वेरी वाइड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उस वक्त के यानी कि ये भी एक्सपेक्ट किया गया है, ये भी माना गया है कि जो राजा हुआ करता था, राजन्या, वो क्या करता था, अब क्या है, राजा यानी कि खेती नहीं करता है। पहले क्या था, राजा यानी कि लोगों के साथ मिलकर खेती किया करता था। तो उससे ये पता चलता है कि उन राजा और उसके बीच में ज़्यादा कोई वाइड डिफरेंस देखने को, बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। Although nobles and warriors ruled over their peasants kinsmen, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यद्यपि हमने देखा है जो नोबल्स हैं, वेरियर्स हैं, वो रूल करते हैं ओवर देयर पीजेंट्स, ठीक है, ठीक है, यानी कि जो खेतिहर लोग थे उनके ऊपर यानी कि एक किस्म से राज देखने को मिलता है। दे हैड डिपेंड अपॉन द पीजेंट्स मिलिशिया टू फाइट अगेंस्ट enemies and could not grant land without the consents of the tribal peasant। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो यानी कि डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, पीजेंट के ऊपर, ठीक है, फाइट अगेंस्ट एनिमी के लिए, यानी कि हम लोग यानी कि उन्हीं से यानी कि खाएंगे जो यानी कि जो मिला है उन्हीं से, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एनिमी से लड़ने के लिए भी यानी कि उन्हीं पर वो डिपेंडेंट थे। नॉट टू ग्रांट विदाउट द कंसेंट्स ऑफ द ट्राइबल पीजेंट्री, और वो यानी कि ग्रांट में जो जमीन थी नहीं दिया करते थे, किसके लिए, वो ट्राइबल जो यानी कि पीजेंट्री उनसे यानी कि कंसेंट किया करते थे। ऑल दिस प्लेस द नोबल्स एंड द वेरियर्स in difficulties positions and the prevent sharp distinction between the rulers and the ruled। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये सभी जो प्लेस नोबल्स हैं, ठीक है, वेरियर्स एंड द वेरियर्स, वो उनको डिफिकल्ट पोजीशन में डाल देते हैं, ठीक है। प्रिवेंट शार्प्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रूलर्स, और ये डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है रूलर्स एंड द जो रूल्ड किया जा रहा है, ठीक है। आगे जो हमारा है वर्ना सिस्टम जो ऑफ द यानी कि प्रोडक्शन एंड द गवर्नमेंट, ये हम लोग यानी कि अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में फिर से आपको, और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए विचारों के साथ, बड़े धैर्य के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, आपका दोस्त संजय सिंह।